Hi friends, till now we have completed 4 sections of chapter number 2. Now let's move on for the 5th section, that is dimensions. This section of chapter number 2 is very important. Remember well, it is very important as far as this chapter is concerned. The weightage of this chapter is around 7 to 10 marks. In that maximum weightage will be of dimensions, this section. Okay, now इस section में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो we know that in the very first section we introduced physical quantities. Physical quantities we classified into two types. That is fundamental physical quantities and second was derived physical quantities. ये दो सेक्शन में डिवाइड किया था. फंडामेंटल में पूरा SI सिस्टम, that is mass, length, time and so on, and derived में all others. Now any physical quantity, कोई भी physical quantity ले लो, it can be obtained in terms of fundamental quantities. Take any physical quantity, we can obtain it in terms of fundamental quantities. Representing a given physical quantity in terms of its fundamental quantities, या फिर obtaining a given unit in terms of fundamental units. That method leads to dimensions. एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. डेंसिटी, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. Suppose a quantity called density. Now density is mass upon volume, that we know very well. Density is mass upon volume. Now density के फॉर्मूला में mass को m लिख लेते हैं. Volume is nothing but for a cube, let's say length cube. For a cube we said as length cube. So it can be written as m upon L3. यानी कि अगर इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखे तो m का पावर 1 सिंगल पावर, L 3 है नीचे, ऊपर ले तो -3. टाइम तो है ही नहीं तो t0 लिख दिया, जो नहीं है उसका पावर 0 कर दिया. सो डेंसिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड दिस वे आल्सो. बराबर है. दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेंसिटी इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी. इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी. m1l - 3 t0. एंड इस फॉर्मूला में जो एक्सपोनेंट्स इन्वॉल्व है 1, -3 एंड 0 आर कॉल्ड, these exponents are called dimensions. These are called dimensions. Dimensions of density with respect to mass, length and time. More exactly we can say that dimension of density with respect to mass is 1. यानी डेंसिटी में मास एक बार आता है. डायमेंशन ऑफ डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेंथ इज -3. यानी डेंसिटी में लेंथ 3 बार आता है बट नेगेटिव, मतलब डिनोमिनेटर में. डायमेंशन ऑफ डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 0. यानी कि इन केस ऑफ डेंसिटी टाइम डज नॉट अकर, टाइम है ही नहीं अंदर, ये 0 इंडिकेट करता है. तो दिस वे for all the physical quantities we can obtain them in terms of mass, length and time and the other fundamental quantities. Okay, this representation of a given quantity in terms of fundamental quantities is called dimensional formula and the exponents are called dimensions. In certain reference books you will find that this written as 1 - 3 0 in the order of mass, length and time. 1 - 3 0 तो वहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं, पर हम लोग हमारे बुक के हिसाब से विल बी मूविंग बाय दिस वे, रिप्रेजेंटिंग बाय MLT, एक्सपोनेंट ऑफ MLT. ओके, तो ये एक एग्जांपल हो गया. अब हमें काफी सारी क्वांटिटीज लेनी है एक के बाद एक, तो विल प्रिपेयर टेबल इन विच विल बी मेकिंग दिस टाइप ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला. ओके, आपके नोट्स में भी वो मैंने दिया हुआ है, तो जस्ट स्विच ऑन टू द पेपर पेज हैविंग दैट ब्लैंक टेबल. हम उसे 1 by 1 सारी क्वांटिटीज उठा रहे हैं. ओके, चलो पहले मैं आपको टेबल का परिचय करा देता हूँ. टेबल में वेरी फर्स्ट कॉलम है सीरियल नंबर, ये हमारे टेबल के साथ मैच हो इसके लिए रखा हुआ है खास. फिर क्वांटिटी का नाम, फिर उसका फॉर्मूला या सिंबल जिसके बेस पर हम लोग उसे डिराइव करेंगे. देन कम्स डायमेंशनल फॉर्मूला जो हम ऑब्टेन करेंगे MLT के टर्म्स में. फिर यूनिट लिखेंगे उस क्वांटिटी का SI सिस्टम में एंड CGS सिस्टम में. ओके, there is one more column available in the table but that we are not filling right now, relation between units. Okay,
ये हमने ब्लैंक क्यों रखा है? इन ऑर्डर टू डिराइव द डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे ऑब्टेन किया वो यहाँ पे हम लोग वर्कआउट करेंगे। ओके, शुरू करते हैं। टेबल में सबसे पहली एंट्री 0 रखा हुआ है, क्वांटिटी में लिखा है नंबर। अगर मान लो कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट है या फिर कोई नंबर है तो उसके बारे में। अब नंबर यानी प्योर नंबर, समथिंग लाइक 3, पाई, 2.4, ये सारे नंबर्स हैं। इनमें मास, लेंथ और टाइम तो कहीं आना नहीं है, तो देखो व्हाट विल हैपन, दे विल बी हैविंग नो डायमेंशन एज फार एज एमएलटी इज कंसर्न। इनके बारे में तो कुछ लिखेंगे नहीं, फॉर्मूला सिंबल, पर डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 t0 फॉर देम, नो यूनिट्स। ओके, ये नंबर हो गया। फिर आता है वेरी फर्स्ट क्वांटिटी इज मास, सिंबल इसका छोटा m यूज करते हैं। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला में ये खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी से मास का m1 आएगा, l नहीं, t नहीं। ओके, इट्स अ फंडामेंटल क्वांटिटी मास, तो मास एक बार, नो लेंथ नो टाइम। इसका ऐसा यूनिट इज केजी और सीजीएस यूनिट इज ग्राम। ओके, फिर आता है सेकेंड वन, दैट इज लेंथ। लेंथ को दूसरे वर्ड में इट कैन ऑल्सो बी गिवन, इट कैन ऑल्सो बी रिफर्ड एज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और यू कैन से लेंथ के साथ ब्रेड्थ भी आ सकता है, विड्थ भी आ सकता है। यू कैन इवन रिफर इट एज रेडियस और यू कैन रिफर इट एज डायामीटर। any quantity which can be measured using a ruler or a scale, that is comes in length. Length, distance, displacement, breadth, width, radius, height भी ले सकते हैं यहाँ पे, you can even say height also can be taken here. तो ये सब length को रेफर कर रहे हैं। length के ये एलियस नेम हो गए, बराबर है, तो इन नामों से भी उनको पहचानते, they all refer to length. length के लिए सिंबल में छोटा l और डिस्टेंस के लिए छोटा d यूज किया होगा, L और D। एंड यहाँ पे लेंथ अकेला ही है, m0 l1 t0। whenever you find that only one quantity has a power exponent 1, बाकी सारे जीरो से मतलब वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। यहाँ पे मास अलोन या लेंथ अलोन। लेंथ का ऐसा यूनिट इज मीटर, सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर। ओके, ये लेंथ के बारे में हो गया। तो लेंथ के अलग अलग फॉर्म में नाम दिया, आपको लिखना हो तो आप लिख डाले, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। ओके, फिर बाद में इसके बाद द नेक्स्ट क्वांटिटी वी टेक इज थर्ड वन एंड दैट इज टाइम। टाइम को डिनोट करते हैं छोटे टी से, एंड इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा m0 l0 t1, m0 l0 t1। एंड टाइम के लिए ऐसा यूनिट सेकेंड, सीजीएस यूनिट ऑल्सो सेकेंड, सेम यूनिट। ओके, फिर बाद में हमारे पास है नंबर 4 इज एरिया। नंबर 4 इज एरिया। एरिया का सिंबल है कैपिटल ए और फॉर्मूला l²। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लेने का, तो l² ना, तो ऊपर देखो क्वांटिटी में l का ये रहा, लेंथ का l है, डायमेंशनल फॉर्मूला m0, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा था m0 l1 t0 एंड उसको स्क्वायर करना है तो इसको स्क्वायर कर दिया, बराबर है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, वी वांट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एरिया, तो एरिया के डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए वी राइट इट दिस वे, a इज इक्वल टू l²। l का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l1 t0 एंड इसको किया स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, तो m रेज टू 0 इंटू 2 0, l रेज टू 1 इंटू 2 2, t रेज टू 0 इंटू 2 अगेन 0। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एरिया का। ओके, तो फॉर एरिया वी हैव डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l2 t0। क्या करना है, क्वांटिटी इन्वॉल्व कौन सा l है, l का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l1 t0, उसको स्क्वायर। फिर लेंथ का यूनिट ऐसा यूनिट कौन सा, मीटर, तो मीटर का स्क्वायर। फिर सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर है तो स्क्वायर करना है, तो यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया एरिया के लिए। चलो सिमिलर वन, फिफ्थ वन इज वॉल्यूम। वॉल्यूम को भी डिनोट बाय कैपिटल वी एंड फॉर्मूला उसका l3, l⁻3। अब यहाँ पे वॉल्यूम ले रहे हैं तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला l3 है, l3। तो यहाँ पे लेंथ का तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा, उसको क्यूब कर रहे हैं, तो दिस विल कम आउट टू बी m0 l3 t0। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम विल कम आउट टू बी m0 l3 t0। यूनिट क्या हो जाएगा, तो l का ऐसा यूनिट मीटर है तो क्यूब करेंगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा। l का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर है
तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया रिगार्डिंग वॉल्यूम, राइट। फिर उसके बाद आता है हमारे पास डेंसिटी, जो हमने पहले ही लिया था। 6 नंबर इज डेंसिटी। डेंसिटी का सिंबल रो है एंड फॉर्मूला इसका मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ पे चलो वर्कआउट करते हैं। हमने स्टार्टिंग में ही लिया था, पर इसको टेबल के हिसाब से वर्कआउट करें तो डेंसिटी इज गिवन एज मास अपॉन वॉल्यूम। मास कहाँ पे, ये रहा। इसका डायमेंशन फॉर्मूला न्यूमेटर में m1 L0 T0, ये मास के लिए हो गया। फिर नीचे वॉल्यूम डिनोमिनेटर में, तो वॉल्यूम ये रहा, डायमेंशन फॉर्मूला m0 L3 T0, ये वॉल्यूम का हो गया। नाउ सिंप्लीफाइंग दिस व्हाट वी गेट इज m 1 minus 0 1 L 0 minus 3 0 minus 3 तो विल बी -3। T तो दोनों ही 0, तो ये तो 0 रहेगा। ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया डेंसिटी का। डायमेंशन फॉर्मूला हो गया डेंसिटी का m1 L minus 3 T0। दिस विल बी m1 L minus 3 T0 एंड यूनिट इसका क्या रहेगा, तो ऊपर मास है, मास का ऐसा यूनिट इज kg અને वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो हियर यूनिट विल बी, ऐसा यूनिट विल बी kg per meter cube and CGS unit similarly will be gram upon centimeter cube, gram per centimeter cube। Got it? तो ये हो गया। अगर आपको ये kg इंटू मीटर, kg पर मीटर क्यूब नहीं लिखना है तो यू कैन राइट दिस एज दिस वे आल्सो, kg इंटू मीटर रेज टू -3, यू कैन राइट दैट वे आल्सो। आप CGS यूनिट को भी लिख सकते हैं ग्राम इंटू सेंटीमीटर रेज टू -3, दैट वे आल्सो यू कैन राइट। ये ऑल्टरनेट वे लिखने का। ओके, तो ये हो गया 0 से लेके 6 तक। ओके, वीडियो पॉज करके कॉपी इट आउट इन योर टेबल, पेंसिल से कॉपी करना पहले ताकि कोई गलती ना हो। अगर आपको कैसे आया ऑब्टेन करना है तो भी आप साइड में नोट कर सकते हैं। यू कैन हैव योर ओन इन योर ओन नोटबुक, यू कैन राइट द मेथड ऑफ डिराइविंग इट आल्सो, सो दैट इन फ्यूचर इफ यू रिफर देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड हाउ इट केम। ओके, तो देख लीजिए इतना, फिर आगे चलते हैं 7 नंबर से। चलते हैं आगे। नेक्स्ट वी कम टू नंबर 7। टेबल में देखिए तो 7 नंबर में स्पीड है, या फिर उसको वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। स्पीड और वेलोसिटी बोथ आर सेम थिंग, बोथ आर सिनोनिमस, ये हमने पढ़ा हुआ है, बराबर है। तो स्पीड या वेलोसिटी, इट इज डिनोटेड बाय v, छोटा v है, छोटा v पूछ के साथ बनाना है, तो छोटा v इज अ सिंबल फॉर स्पीड। फॉर्मूला इसका हो जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस यानी लेंथ हुआ, तो आगे हमने देखा था स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस यानी लेंथ, सो m0 L1 T0 और टाइम के लिए m0 L0 T1। सो देयरफॉर दिस कम्स आउट टू बी, यस, इट विल बी m raised to 0, L raised to 1 minus 0 is 1, T raised to 0 minus 1 is -1, so m0 L1 T minus 1, that's the dimensional formula for speed, m0 L1 T minus 1। ओके, एंड ऐसा यूनिट डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्टेंस के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, मीटर पर सेकंड, एंड सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, ये हो गया स्पीड या वेलोसिटी के लिए। फिर आता है एक एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के लिए हम डिनोट करते हैं छोटे ए से, एंड इट इज गिवन एज स्पीड अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन इज गिवन एज स्पीड अपॉन टाइम, तो एक्सीलरेशन विल राइट इट एज a which is speed upon time। स्पीड के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला अभी आया था m0 L1 T minus 1 अपॉन टाइम एंड m0 L0 T1, so this will be m0 L1 T minus 2 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, एक्सीलरेशन के लिए स्पीड का फॉर्म डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा m0 L1 T minus 1 अपॉन टाइम, तो अपॉन टाइम तो एक और T minus 2 हो गया। So dimensional formula for acceleration is m0 L1 T minus 2, एंड इसका यूनिट क्या आएगा, तो स्पीड का मीटर पर सेकेंड, स्पीड का मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। वी कैनॉट यूज डबल रेशो, सो व्हाट वी डू इज वी ट्रांसफर दिस सेकेंड इन द डिनोमिनेटर एंड वी गेट सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन विल बी, ऐसा यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, and CGS यूनिट विल बी सेंटीमीटर पर
सेकेंड स्क्वायर। ओके, एक और क्वांटिटी है जिसे हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तरीके जानते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये हमारे लिए तो बहुत ही पॉपुलर क्वांटिटी है, वे डिनोटेड बाय छोटा जी, इसको हम लोग छोटा जी लिखते थे। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए क्या आएगा, देखो आगे भले ग्रेविटेशन लिखा है, पीछे तो एक्सेलरेशन है ना, दैट इज बेसिकली एन एक्सेलरेशन। भले आगे ग्रेविटेशनल लिखा है पर है तो एक्सेलरेशन ना, बेसिकली एक्सेलरेशन है, जो एक्सेलरेशन आता है वही फॉलो करेगा। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन छोटे जी के लिए भी यही आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो इट्स बेसिकली एन एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के लिए यही लिखेंगे। ओके, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन छोटे जी के लिए भी सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, तो ए लिखो या जी लिखो, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L1 T-2। ओके, इसके बाद में 9th आता है हमारे पास, 9th है मोमेंटम। 9th इज मोमेंटम। ये क्वांटिटी हमारे पास 9th स्टैंडर्ड में आई थी। मोमेंटम इज रिटन एज सिंबलाइज्ड बाय स्मॉल p एंड इज फॉर्मूला इज m into v, मास into स्पीड। फॉर्मूला इज मास into स्पीड। चलो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्टेन करते हैं। तो मोमेंटम p इज इक्वल टू मास into स्पीड। मास है हमारे पास में, मास का m1 L0 T0 हमारे पास। फिर स्पीड के लिए m0 L1 T-1 है हमारे पास, दोनों मल्टीप्लीकेशन में। जब मल्टीप्लीकेशन में हो तो पावर ऐड होते हैं, तो m रेज टू पावर 1 + 0 1, L के पावर ऐड करते हैं 0 + 1 इज अगेन 1, T का पावर 0 + -1 तो दैट इज -1। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया मोमेंटम का। ओके, m1 L1 T-1। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मोमेंटम इज m1 L1 T-1। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो मास का यूनिट इज kg और स्पीड का मीटर पर सेकेंड। तो दैट विल बी द ऐसा यूनिट kg into मीटर पर सेकेंड। और CGS में सिमिलरली ग्राम into सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड। ये इसका CGS यूनिट होगा। ओके, मोमेंटम का ये हो गया क्लियर। उसके बाद मोमेंटम के बाद नेक्स्ट एंट्री आती है फोर्स की। 10 नंबर इज फोर्स। फोर्स का नोटेशन कैपिटल F और पॉपुलर फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। चलो देखते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आता है। तो फोर्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी, उसको ऑब्टेन कर रहे हैं। लेट्स सी हाउ इट इज डन। F इज इक्वल टू m है, पहले फॉर्मूला लिखा। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L0 T0 और एक्सेलरेशन का m0 L1 T-2। कहाँ है ये रहा। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों मल्टीप्लीकेशन में, इससे पावर विल गेट एडेड 1 + 0 1, L का पावर 0 + 1 तो अगेन 1, T का पावर 0 + -2 तो दिस विल बी -2। तो m1 L1 T-2 is a dimensional formula for force, m1 L1 T-2। ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का होगा क्लियर। अब इसका यूनिट, तो मास का kg और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। kg मीटर, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू kg मास का। इसे प्यार से हम लोग न्यूटन कहते हैं। तो इसका यूनिट न्यूटन which can be written as also written as or kg into meter per second square, जिसको हम लोग न्यूटन कहते हैं। एंड CGS यूनिट ग्राम into सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, जिसे प्यार से डाइन कहते हैं। फुल फॉर्म लिखे तो DYNE डाइन। तो दैट इज द यूनिट DYNE डाइन, CGS यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन एंड डाइन। ऐसा यूनिट न्यूटन, CGS यूनिट डाइन। डाइन इज नथिंग बट कैन आल्सो बी रिटन एज ग्राम into सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये टेबल में 10 तक आ गए, फोर्स भी आ गया अंदर। ओके, तो स्पीड और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम एंड फोर्स क्लियर।